रियासत कर्नाटक के तुमकुर शहर में एक शादी महल को तालीमी महल में तब्दील करने वाले अफजल शरीफ की मेहनत अब रंग ला रही है। मेहनत बहुत बार उन्होंने ऐसा मौका हमको देखने में मिला है कि अपने बच्चों जैसा प्यार। जी हाँ, अफजल शरीफ की सदारत में कायम ग्लोबल शाहीन कॉलेज में कई लड़कियों का मुस्तकबिल संवर रहा है। हर साल यहाँ नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात की तादाद में इजाफा हो रहा है। साल 2022 के नताइज में ग्लोबल शाहीन कॉलेज तुमकुर का मुजाहिरा शानदार रहा है। यहाँ पीयूसी दुवम साइंस और कॉमर्स के शोबे में 38 लड़कियों ने डिस्टिंक्शन और 70 लड़कियों ने फर्स्ट क्लास दर्जे से कामयाबी हासिल की है। इदारे के लिए फख्र की बात यह है कि यहाँ की तालिबा सैयदा सुमैया सुल्ताना ने रियासती सतह पर 8वां रैंक और जिले सतह पर 4वां रैंक हासिल किया है। लिहाजा साल 2022 के तमाम टॉपर्स को तहनीत पेश करने के लिए ग्लोबल शाहीन कॉलेज में 21 जून 2022 को एक यादगार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। कर्नाटक भर में 8वां रैंक हासिल करने वाली सईदा सुमैया सुल्ताना और कॉमर्स शोबे की टॉपर आयशा यम को खुसूसी तहनीत पेश की गई। बाकी तमाम टॉपर्स को भी एजाज से नवाजा गया। ग्लोबल शाहीन कॉलेज के बानी अफजल शरीफ की सदारत में मुनक़दा इस तकरीब में तुमकुर जिला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद अफरोज अहमद और महकमे तालीम के वजीफेयाब ज्वाइंट कमिश्नर खलील अहमद शरीफ मेहमानाने खुसूसी रहे। पेश है जुनूबी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Myself Saida Sumaya Sultana. Now I am here to recite a naat. छोड़ कर आपका दरबार मैं फिर क्या देखूं, छोड़ कर आपका दरबार मैं फिर क्या देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। उनके दरबार में उनको मैं सुनाऊं नाते, उनके दरबार में उनको मैं सुनाऊं नाते। इश्क में उनके गुलामों का चलना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। All of you know today we have gathered here for the felicitation program to the second PUC Science and Commerce students, and I just wanted to add, and I am very much delighted to bring to your kind notice that our college topper Sayyida Sumaya Sultana secured 8th state rank and 4th district rank, which made us to become one of the eminent
and esteemed institution in Tumkur district. The college and the management don't want to miss this great opportunity to felicitate, to encourage, to appreciate for their excellent achievement. That's why we have organized this event. For this event, first of all, I would like to welcome the president of this event, Janab Afzal Sharif Saab, Managing Director, Global Shaheen College, to this event. Welcome you, sir. I would like to welcome a renowned and eminent advocate, dynamic personality, Janab Muhammad Afroz Ahmad Saab, Chairman, District Waqf Board, Tumakuru, to this event. Welcome you. And today we have one of the distinguished personalities with us who has served nearly 32 years to students community all across Karnataka through various designations. He started his journey as a lecturer in degree college, and he has been appointed as a AO, BEO, DDPI and Joint Director to Public Instruction, Government of Karnataka. He is none other than Janab Khalil Ahmad Sharif Saab, retired Joint Director, Public Instructions, Government of Karnataka. I would like to welcome you, sir. I also extend warm welcome to our dynamic secretary of this college, Janab Abrar Ahmad Saab, to this event. Welcome you, sir. On this stage, we have another dynamic lady, Shahnaz Kausar Madam, advocate. I welcome her for this event. Welcome you, madam. I also welcome all the parents to this felicitation program ceremony of the year 2021-22. Now it's the time to honor to second PU topper of state 8th rank and district 4th rank, Saida Sumaya Sultana from Science, PCMU. Aisha M from Commerce, CEBA. करके आज इसका फायदा आज हमारे कौम को पहुंच रहा है। आप लोग सब जानते हैं कि आज के हालात क्या गुजर रहे हैं और आइंदा भी क्या होने वाला होगा। तो ऐसे मौके पर ये हमारे लिए एक फख्र की बात है कि आज टुमकुर शहर में ये शाहीन ग्लोबल जो अदारा चल रहा है और हमारे बहन बच्चों के लिए पूरे तौर से सेफर साइट है, हर चीज की पाबंदी है और यहाँ पे अच्छा सा इंतजाम करके अच्छे टीचरों को मुकर्रर करके आपको अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। आप लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अदारे में काम चल रहा है। इसका रिजल्ट तो आप यहाँ बता रहे हैं कि हम जिनके लिए प्राइज दिए, जो कामयाबी हासिल किए हैं, तो इसका नतीजा ये मालूम होता है कि ये इंस्टीट्यूशन अच्छे पैमाने पे काम कर रहा है और बच्चों में भी दिलचस्पी है, लेकिन ये दिलचस्पी अभी सेटिस्फाइड नहीं। अभी हमने एक बच्ची को इतना स्कोर करते हुए देखा है, तो इंशाअल्लाह आइंदा साल इसमें से 50 या 60% बच्चों को हमें ये पैमाने पे देखना चाहते हैं और उम्मीद है कि आप इसके ऊपर अमल करेंगे। आज का दौर ऐसा नहीं है जो हमारी तालीम थी। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूं। 82 अक्टूबर में मैं LLM के लिए जाके मद्रास यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हुआ, जब अन्नम्मा लॉ कॉलेज करके बोल के थी।
वहां पे ऐसा माहौल था, इतनी टफ इंग्लिश बोलते थे वहां पे। क्लास होने के बाद हम जाके कोई भी डिक्शनरी लेके ढूंढे तो उसका माना नहीं मिलता था, और कोई हजरत से हम जाके इंक्वायरी करें तो कोई बताने को तैयार नहीं था, इतनी टफ इंग्लिश। लेकिन आपकी खुशकिस्मती है कि अब है ना मोबाइल का जमाना है, हर चीज गूगल में मिलता है, एक सेकंड में आप हर चीज को पा सकते हैं। तो ये सुनहरी मौका आप मत गवाइए और मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। खासकर हमारे स्टूडेंट्स में ये देखा जा रहा है कि मोबाइल से बहुत हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन बस आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मोबाइल का सही तरीका इस्तेमाल करें और पढ़ाई में पूरे तौर से दिलचस्पी लगाकर इस पढ़ाई को मुकम्मल करें। आप तो सब जानते हैं हमारे वालिदैन पहले क्या करते थे, आप जब बचपन में क्या करते थे, आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखाते थे, लेकिन जो घर की दहलीज थी ना, वो दहलीज को उंगला नहीं थे, वो खुद अपने उंगल देते थे। अब चलते 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 एक दिन ऐसा आता था कि आप दहलीज उंगल जाते थे। तो आज का माहौल ऐसा है कि हम चलना सिखा दिए हैं, लेकिन आप दहलीज उंगलना है। दहलीज उंगलने के माने ये नहीं कि आप ऊंचे पैमाने पे जाना है। आज हमारा इल्म इतना कमजोर है कि हम बोल नहीं सकते इसका तोड़ क्या है। अब हम तलवार या कैंची से लड़ने का जमाना नहीं है, अब हमारा जमाना है इल्म को आगे लेके आना है, कलम की ताकत दिखाना है। अगर कलम की ताकत आप लोग दिखा रहे हैं तो आप किसी भी पैमाने पे जा सकते हैं, या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, कोई भी ऑफिसर बनो, जा सकते हैं। देखो कल ही हाल में पेपर में सालार में आया है, बॉम्बे में अरबी मदरसे कॉलेज में 22 बच्चे पीयूसी में फर्स्ट क्लास पास हुए हैं, अरबी मदरसे में। इससे पहले तो हमें कभी ऐसा नहीं पड़ा कि अरबी मदरसे में बच्चे की तालीम ऐसी हुई बोल के, लेकिन अब जमाना ऐसा नहीं है, सब तरक्की कर रहा है। तो आप लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि इल्म के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें और उसके साथ साथ दीनी माहौल भी पैदा करें, नमाज की पाबंदी करें, हर चीज को सामने रखते हुए सुन्नत के तरीके पे चले, और क्लासेस को बंद करना, चक्कर मारना, ये सब छोड़ के अच्छी तालीम हासिल करके इंशाल्लाह हर साल यही कॉलेज में एक के बदली 50 या 60 तलबा को हमने ऑनर करने का मौका देते करके आपसे उम्मीद करता हुआ मेरी बात को खत्म करता हूँ। ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೇ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Really, this is great immense pleasure to congratulate all of you on this happy occasion for having secured ranks and distinction in this PUC examination. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಆಗಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು 18-19 ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಶರೀಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಟಿವಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋರು, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕು. ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ತಗುರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ತಂದಿರೋದಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೂ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ತಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ತಗೊಂಡು ಬಹಳ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೇರ್ತೀರಾ, BE ಸೇರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರುವಂತಹ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ತೀರಾ, ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋಕಿದೆ, ಏನು ಒಂದು ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ತರ
ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಬರೆದು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೇ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸೋದು, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಲಿಯೋದು, ನಂಬರ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದು, ಬರೀ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ಇದೆ. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆದಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು. ತಾವೀಗ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. एहलन और सहलन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तीसरी बैच का जो आउट गोइंग स्टूडेंट्स का ये हौसला अफजाई का प्रोग्राम है। मैं फिर एक बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। हमारी कॉलेज में स्टेट का 8 रैंक आना कोई मामूली बात नहीं है। ये सब पेरेंट्स का ताल्लुक है। असातिज़ा यहाँ पे हैं, इनकी लगन, इनकी मेहनत, बहुत बार इन्होंने ऐसा मौका हमको देखने में मिला है कि अपने बच्चों जैसा प्यार और अपने बहनों जैसा प्यार से बच्चों को पढ़ाया है। कभी उससे भी ज्यादा जाके बच्चों की तरबियत की है, वरना ये रिजल्ट हमारे लिए मुमकिन नहीं था। Now I would to call Shanta Kumari from Commerce Department to announce the prize distribution list. Good morning to all. First of all, I would like to congratulate all our college toppers in our academic year 2021 and 22. And I would like to call Janab Muhammad Afroz Ahmad Saab to distribute the prize our college toppers. Then from a PCMB student, Sonu R, she scored 576 in a public exam. Then Sania, PCBH student, she scored 570 in a board exam. Next, Armine M, she scored 553 in a exam. Next, Afiza Taj, 561. Sania Ban, CBA, 552. Atiya Sidika, PCBH, 560. Next, Muskan G, PCBH, 555. Next, I would like to call our MD sir, Mr. Afzal Sharif sir, to distribute the prize. Tasmiya Fatima, 547. Rabia Sana, PCMB, 541. Nazira Begum, CBA, 540. Asiya Khanam, 534. Next, Zoha Fatima, PCMB, 532.
PCMB 530. Next, Sania Tabassum CBA 530. Sana Madina from CBA 528. Ume Amia CBA 528. Next, Ume Kulsum CBA 528. Nurain Firdaus PCMB 558. Next, I'd like to request Janab Khalil Ahmad Saf to distribute the prize our college toppers. Asma Banu from PCMB scored 527 in exam. Next, Umaira from PCBH 527. Next, Kamlin Fatima from PCBH 526. Afrin from CBA 525. Shifa Mehri from PCBH 524. Shahna Zunisa from CBA 522. Amrit Kausar from PCBH 520. Kutaijitul Kubra from CBA 580. Atiya Kausar CBA 560. Nisba Sanobar from CBA 560. Tasmiya M PCMB 546. Taskin Fatima 55. YA Aksha Fatima PCBH 511. Nida Sultana PCBH 512. Thank you and congratulate all our college toppers. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ
ತಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ತಾವು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾವು ಪಕ್ಕದ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು for IAS, IPS, AS, IES, AFS, and IRS. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು for 100% result in home science. Next, Yasmin Fatima from English department. She have given 100% result in English. Next, Shanta Kumari madam from Commerce Department, Business Studies lecturer. She has given 100% in PS. A big round of applause. Next, Balkis madam, accountancy lecturer from Commerce Department, for giving 100% result. Next is House Sharif sir, Urdu lecturer. Next is Sheikh Muhammad Anwar sir, for giving 100% result in economics. A big round of applause for our principal sir. Next, I request our chairman. Dear students, here we have a special announcement to our state topper Sayyida Sumaya Sultana. We have Advocate Madam Shehbaz Hossain. She wanted to honor her. So I request Sayyida Sumaya Sultana along with her parents come over the dais and receive this honor. I would like to express our deep sense of gratitude to Vice Chairman Rahmat Unisa Madam. Thank you, Madam.
Secretary Mr. Abrar Ahmad sir. Thank you, sir. I thank our principal, Mr. Sheikh Muhammad Anwar sir, who are all source of inspiration. Thank you, sir. I thank all known and unknown hands that contributed for the success of this prize event. I also congratulate all the students on your well and deserved success. Congratulations, dear students. Thank you. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಡೈಲಮಾ ಇದೆ, ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋ ಬೆಳ್ಳೋ, ಮತ್ತೆ ಫೋಬಿಯಾ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಕುಟುಂಬ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಆಗೋದು, ನಾವು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವಕಾಶ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಈ ಸ್ಟೀಚ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಡೈಲಮಾ ಇರ್ಬಾರ್ದು, ಫೋಬಿಯಾ ಇರ್ಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಧೈರ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು IAS, IPS, KS, IES, EFS and IRS ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. अस्सलाम वालेकुम. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. अल्हम्दुलिल्लाह एक आज खुशी का मौका है हमारे लिए. इस मौके पर मैं आप लोगों से ये मेरी खुशी इजहार करना चाहता हूँ कि हमारी कॉलेज ये हमारा तीसरा साल रहा, इसका एक बेहतरीन नताइज आया है और इस साल कर्नाटका का 8th रैंक हम लोग हासिल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और डिस्ट्रिक्ट का 4th रैंक है, और अगर 4 सब्जेक्ट PCM भी लेंगे तो वी आर द फर्स्ट रैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. तो एक इदारा कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी मेयारी तालीम दे रहा है, इस बात की मुझे तसल्ली है. और साथ साथ मैं तमाम यहाँ पे हमारे असातिज़ा और जितने भी हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. उन्होंने हर एतबार से हर तरीक़े से हमारा साथ दिया, ख़ास करके पेरेंट्स, उनका बहुत ताउन रहा, वरना हमारे लिए मुमकिन नहीं था. एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हुए और इतना बड़ा अचीवमेंट कम वक्त में हमारे लिए एक बाइज़ फ़ख्र है. इंशाअल्लाह आइंदा साल भी इस तरह की तालीम और आला तालीम इंशाअल्लाह हम देंगे. और इस इदारे में सिर्फ मुस्लिम बच्चे नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे. अभी इस कॉलेज का दूसरा जो टॉपर्स हैं, दूसरे टॉपर, उनका नाम सोनू प्रसाद है. 96% उन्होंने निकाला है. थोड़े सा चूक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वरना ये भी 99 के करीब निकालती बच्ची. एक अच्छा माहौल है यहाँ पे. जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा कैंपस मोबाइल फ्री कैंपस है और इस बात का हम लोग को एहसास है कि, और इस बात पे मुतमईन भी हम हैं कि गैर मुस्लिम बच्चे यहाँ पे अच्छे रैंकर्स जो 98% ले हुए बच्चे भी हमारे पास चेंज ऑफ कॉलेज इस बार किए हैं. इंशाल्लाह गुज़रे साल भी हमारे लिए एक बेहतरीन रिज़ल्ट आया था. बहुत सारे बच्चों को नीट में नीट लिख के मुफ्त मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इंशाअल्लाह इसी तरह आप सब लोगों के ताबून से और यहाँ पे जो हमारे दीन हैं इस शहर के, उनका पूरा हमारे लिए सपोर्ट है. इस वक्त पे मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और इस इदारे की तरक्की के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों से ये
भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी तवज्जो से इस इदारे में अच्छी से अच्छी तालीम देंगे। सब ये जो टॉप आए हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये किस खानदान से? जी, इस जो लड़की जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को फ़ख्र है इस बच्ची पे। ये बहुत ही एक रूरल एरिया से, यानी खरिया है, खुलियार बोल के, वहाँ से आए हुए हैं। वालिदैन भी छोटे मोटे कारोबार है और ऐसे कोई बड़ी हाई फाई स्कूल में पढ़े नहीं हैं ये। इनका जो SSLC का रिज़ल्ट था 96% ऐसा कुछ था, और उस 96% की बच्ची को लेके हम लोग उसको निखार के 98.5% विथ NCERT लाना हमारे लिए एक रियली टफ काम था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बहुत मेहनत की है और हम इस बच्ची का तहे दिल से उनके वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया, बच्ची को यहीं पे छोड़ा, बल्कि बोर्डिंग में रहती थी बच्ची वो, और अक्सर मैं देखा करता था बच्ची हमेशा पढ़ने में लगी रहती थी। इसके लिए एक अच्छा नतीजा आज देखने को मिला है। सवाल ये कि आपका जो इरादा था इस इमारत को शादी महल करने, जी मैं पहले भी बहुत बार मुतमईन है आज के? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है इस बात की कि वो मेरा जो मकसद था शादी महल बनाने का इस जगह पे वो नहीं हुआ। तो आज बेहद खुशी हो रही है मुझे कि मैं एक इदारा, एक तालीमी इदारा बनाकर इस तरह की खिदमत जो अंजाम दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह वो बहुत दूर तक इसके निशान छोड़ेगी और हमारे बच्चे यहाँ से निकलकर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जैसा कि सर ने कहा IAS IPS का भी हमारा प्लान है। जो बच्चे हमारे हसन मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट मिली है उसको हम डॉक्टर बना रहे हैं, मगर हमारा मकसद उनको आगे चल के IAS कराने का है, IPS कराने का है। इस तरह का आइंदा भी हमारे बच्चे सिर्फ ये महदूद ना रहें कि MBBS और इंजीनियरिंग तक, आगे चल के एडमिनिस्ट्रेशन में आए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हाथ बटाएं। हम सब मिल के इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये तमाम हम दरकिनार करते हुए ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर ख्याल करें तो ये इंस्टीट्यूशन में हर लाइन से तालीम भी अच्छी हो रही है और हमारे बच्चों का इंतज़ाम भी अच्छा हो रहा है, उनकी सेफ्टी भी हो रही है। और हमारे अफजल शरीफ साहब जो शादी महल बनाने के इरादे में थे उसको एजुकेशन में कन्वर्ट करना, यह हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि हम चंद साथी हैं इनके साथ, उसमें एक साथी आज हमारा नहीं रहे, मुश्ताक अहमद साहब, तो उनका भी इसमें बहुत ताउन था। इनके ख्यालात हम ख्यालात बनाते थे, हमेशा एजुकेशन के बारे में इनको गाइड करते थे, तो उनका भी इसमें बहुत सा सोर्स है कि आज अफजल शरीफ साहब ये अदारे को शादी में छोड़ के एजुकेशन में कन्वर्ट करके आज इसका फल हम देख रहे हैं। हाँ, तो हमने उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके इरादों को कामयाब करें और ये अदारे को अभी ऊंचे पैमाने पे पहुंचाए। आज एक सुल्ताना एक ग्लोबल का सुल्तान बन के दिखाया है, इसी तरह अभी बल्ला के सुल्तान यहाँ पे पैदा हुए और ये अदारे का नाम रोशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये शाहीन ग्लोबल कॉलेज जो है बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत कम ही मुद्दत में बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहा है। बता रहे थे कि अफजल शरीफ साहब 2019 में ये इदारा शुरू हुआ, 3 साल की मुद्दत में काफ़ी बुलंदी पर पहुँच चुका है। जो पहले इरादा था शादी महल बनने, तो ऐसे तो शादी महल डुमपुर में बहुत हैं, 6-7 शादी महल हैं, मगर जो कॉलेज बना ऐसा कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का, कोई सा भी अच्छा ऐसा कॉलेज नहीं है। वैसे तो ये शहर में बहुत कॉलेजेस हैं, तकरीबन 20, 25, 30 साल से चल रहे हैं, मगर बहुत ही मुख्तसर से कम अरसे में, कम मुद्दत में जो इतना तरक्की किया है, ये बहुत तारीफ़ के काबिल है और इसे बहुत खिदमत ज़्यादा अंजाम दे रहे हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए भी एक एजुकेशन की तरह डेडिकेट, उनकी पूरी फैमिली इसमें डेडिकेटेड होकर, इन्वॉल्व होकर यहाँ पर रह के दिन भर मेहनत करके कर रहे हैं। और तमाम बता रहे थे तमाम बच्चियों को अपने बेटियों की तरह समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो बच्चियाँ जो तालिबात पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उन तमाम को बेटियों की तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, खुद की बच्चियों की तरह समझ कर बहुत दर्द से वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ने की तरफ तरगीब दिला रहे हैं। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, अल्लाह उनको और तरक्की दे। ये इदारा बहुत अच्छा तरक्की करे, फले फूले तरक्की करे, अच्छा एक बड़ा एजुकेशन सेंटर बने। और बता रहे थे वैसा ही IAS IPS का भी सेंटर, कोचिंग सेंटर बना। उनको क्या कहना चाहिए, कौम का नाम रोशन कर रही है? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नाम है। जैसा हमारे दूसरे अहबा बता रहे थे, ये सुल्तान जो बच्ची है ना, वो ग्लोबल शाहीन के सुल्तान है। बहुत अच्छी, बहुत इज्जत की बात है। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ
हमारी बच्ची कामयाब हुई है सेकेंड पीयूसी में। हमारी ख्वाहिश थी इनके बड़े भाई MBBS अब प्रेजेंट हैं ही उन्होंने BMC मेडिकल कॉलेज में। बच्ची भी मुझे बताई थी अम्मा मैं भी अच्छा पढ़ती हूँ, मुझे भी अच्छी जगह जमाना पढ़ाना है तुम्हें। मैं यहाँ हमारा उलियार खरिया हमारा गाँव, हमें खरिया से हमने कॉलेज में भाई को बच्ची को भेजना मुनासिब दूसरी जगह नहीं मुनासिब समझते थे। शाहीन कॉलेज का एक ये इंतज़ाम हुआ, हाँ पर्दे का भी इंतज़ाम हुआ और शाहीन कॉलेज की आपको मैं दौरा भी किया शाहीन कॉलेज का, उसमें इंतज़ाम बहुत अच्छा था। इंतज़ाम में अभी भी मेहमान भी हमारे अच्छे थे, मेज़बान भी। वो इससे देखो SLC में बच्ची अच्छा मार्क्स निकाली ना बोल के 97% निकाली थी। उस वास्ते एक बच्ची को एक उसका भी एक आगे की ज़िंदगी अच्छी बनाना समझ को शाहीन कॉलेज में एडमिशन किया। शाहीन कॉलेज में अफजल साहब हमारा बहुत साथ दिए और फ़ीस की ज़रा बातचीत थी, फ़ीस में भी हमने बहुत बड़ी मुनासिब रकम में जमा लिया, हम पूरा हमारा साथ दिए। अपनी बेटी समझ को कॉलेज में रखे, पूरा भी ख्याल रखे, खाने पीने का इंतज़ाम, ख़ासकर नमाज का इंतज़ाम हमारे बच्चों के वास्ते में, ख़ासकर मुस्लिम बच्चों के वास्ते नमाज का पर्दे का इंतज़ाम और अंदर रहने सहने का इंतज़ाम पूरा भी। उससे हमें बहुत बड़ी बैकग्राउंड क्या, आपके पैसे वाले हैं क्या? नहीं मेरा छोटा मैं मुर्गी का कारोबार, मुर्गी का छोटा दुकान है मेरा, मैं काम करता हूँ मुर्गी की दुकान में काम करता हूँ। मेरा काम मेरी बेटी हरमैन M, मेरी बेटी का परसेंटेज 92.16। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल को काम कर रहा हूँ चिकटैंक हेडक्वार्टर में। मुझे मेरी बेटी SLC होने के बाद बीदर शाहीन से एक फ़ोन आया मुझे, एक मैडम फ़ोन किए, सर तुम्हारी बेटी का ऐसा परसेंटेज है हमारे शाहीन कॉलेज में, बीदर शाहीन को जमा करके बोल को। जब मैं मैडम हमारे लोकल में एक शाहीन कॉलेज, ग्लोबल शाहीन कॉलेज करके बोल को एक कॉलेज ओपन हो रही है, हमें वो हमें शाहीन करना चाह रहे हैं, हमें लोकल में वो तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हें इम्प्रूव होगी, तुम्हें नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल में तुम्हारा नाम बीदर शाहीन कॉलेज का हो गया। हमारे शाहीन कॉलेज को हमें भी हमारे नेशनल लेवल में हमें लगाना चाह रहे हैं। मेरी बच्ची को इंशाल्लाह मैं भान जमा को मैं तरबियत देना चाह रहा हूँ और बोलने में उन्होंने भी अच्छा, बहुत अच्छी बात। इंशाल्लाह मेहनत करी बच्ची ने, क्या मेहनत की, बच्ची क्या सपोर्ट हो बताइए। ये बच्ची बहुत रात दिन पढ़कर बहुत मेहनत उठी और उनकी अम्मी भी बहुत सपोर्ट किया उसे पढ़ने के वास्ते। उनकी मैक्सिमम उनकी अम्मी भी टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर, बहुत मेहनत करे। मैं ड्यूटी में जाकर इंशाल्लाह कभी रात 2 बजे 3 बजे आया तो घर को आया तो बच्ची पढ़ ले बैठ को रहती थी, क्या बेटा इतना पढ़ ले बेटी, तो ज़रा हाथ रेस्ट कर माँ। तो बोलने के बाद नहीं पापा तुम्हें सो जाओ, तुम्हें नहीं ड्यूटी करके आखी, तुम्हें रेस्ट करो, मैं इंशाल्लाह मैं मेरा ज़रा एक सब्जेक्ट है ख़त्म करके, लेसन ख़त्म करके मैं सोचूँ करके बोलते थे। बच्ची बहुत मेहनत करी, बस सुमैया बस दूसरे टीचर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके, दूसरे बच्चे ही उनके नाम मुझे याद नहीं, वो बच्चों के साथ भी डिस्कशन करके हमको बहुत मेहनत करके कोशिश करके इंशाल्लाह ये 92.16% लेने में कामयाब होगी। और यहाँ के टीचर्स, यहाँ के मैनेजमेंट सब बहुत सपोर्ट करें। मेरे बच्चे भी हॉस्टल में कुछ पढ़ी से हैं। कॉलेज के बारे में बोलना है तो ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ತುಮಕೂರು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದು SLC ಮೇಲೆ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೇ. ತುಂಬ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಭೇದ ಭಾವ ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ವಿ ನಾವು. Myself Sonu Prasad and I am from PCMB stream. I have secured 576 in annual examination. First of all, I thank you for all our lecturers, college management and our parents. Well, compared to other colleges, our college infrastructure is so secure, especially for girls. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Harmaniam.
I'm from PCMB stream. I have secured 553 marks out of 600. 92.16% I have scored, and it's really a proud moment for me and for my parents, and even for the Shaheen College, that I could give a better achievement for this college by representing me. It is a truly atmosphere in Shaheen College that not only they do not care of all the students, each and every student. They care about each and every student by giving all the unit tests, mock tests, including not a single teaching and not a teaching staff. Every teacher of our college, lecturer have been supporting in all our academic year. It's really a proud moment as being a Shaheenian in this college. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Saida Sumaya Sultana, and I have secured 98.5% in my second PUC exam. I am very happy to be a topper of this college. I am very proud to say that I am studying in Shaheen PU College, and my aim is to become doctor. Inshallah, next month we have NEET exam, and even my brother is also MBBS. He is studying second year in MBBS in BMC. He has secured 605 in NEET exam last, I think, 2 years back. I think my brother is my role model for me. I will also secure like him, and I will go to BMC medical college, inshallah. क्या करते हैं आपके वालिद साहब? My father is, ये था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगी, उम्मीद थी आपको? inshallah, my मेहनत मेरी. आपके वालिद साहब मेरे अब्बा, I am from हुलियार. मेरे अब्बा सैयद. वरना नहीं बोलो. मेरे अब्बा हुलियार में एक मुर्गा का दुकान, चिकन का दुकान खोले कोई, and I am a daughter of him. I used to work hard. I mean, morning I was getting at 4:30 a.m. and I used to offer tahajjud, and after I used to offer Quran. I used to read Quran, then after Fajr, then after I used to study up to 7:30. Next I used to come to my college, and after 5 o'clock I used to go to hostel. Then again at 5:30 I used to study up to 10:30 a.m. and used to sleep. I don't read in night, I study in morning. Thank you. I thank Allah for giving me these good results for my mehnat and my fruit and success of my hard work. Thank you so much.